Hello, lovely people. This is me, Tripti Korkoli, and as I promised that I'm going to bring a surprise for all of you. So yes, one of my friends, she has come here to share her experience that how she reached to the UK and the whole process. So we will be welcoming her and we will be talking to her. We'll do a little bit chit chat and she'll be sharing everything with you all. This episode is going to be super excited. So stay tuned till the end. So I would like to introduce my friend, Miss Saloni Mahajan. Hi, Saloni. Saloni. Hi, Tripti. Hi, how are You're right, you? Tripti. I'm good. Thank you. How are you? Thank you so much. First of all, I would like to welcome you on my YouTube channel. You are the first person with whom I'm taking interview. And thank you so much for coming and sharing your experience with us. I'm sure that Thank it would be you. very helpful to all of us. So without any I'll further try. ado, let's get started. Okay. I would like you to introduce yourself. Hello, everyone. I'm Saloni Mahajan. I'm from Pathankot, India, which is in Punjab area. And I'm here for my master's MBA, Master's in Business Administration from University for the Creative Arts. I'm married and I have a daughter, 9-year daughter. Oh, wow. So I came here alone first, and now they are in hotel quarantine at the moment because they are in UK, and will be super soon. I'm gonna meet them. Oh, So wow. That's a good exciting. news. Congratulations. Thank you, मैं thank आपको you. समझ सकती हूँ बिल्कुल क्योंकि मैं भी पहले आई थी और मेरे हस्बैंड और मेरे डॉटर बाद में आए थे तो you know my story Oh, very well and we both can relate with each other. Okay, now the my exactly. yes, my next question. आपने बताया मुझे कि आप पहले भी यूके आ चुके हो तो आप कब यूके आए थे किस पर्पस से यूके आए थे किसके साथ यूके आए थे प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस I came in UK in 2010, January intake for masters, in because I did 2010. my BTech in 2010, January intake, Okay, because I did my BTech from India, and then okay, after that, for masters, I chose for my masters, like I'm in computer networking, I chose UK, okay, and I came in University of Bedfordshire. okay. So I came in January 2010. ओके वाओ आप उस टाइम किसके साथ आए थे अपने हस्बैंड के साथ स्टूडेंट वीजा With पे my husband. Yes, with ओके my husband. वाओ Just दैट्स after my ग्रेट marriage. ओके जस्ट आफ्टर योर Mhm. मैरिज सो व्हाट डिड यू स्टडी यू सेड you studied mtech right And take masters in computer networking. Yes. okay from which university University of Bedfordshire. bedfordshire okay what did you do after completing your mtech at that time in 2010 Yeah, my course started in 2010 January, which ended in July 2011. And okay after that, I went for PSW, post study work visa. oh And at that time also post study work visa was yes, there wow yes, it was there. And okay after, I think, when I finished with my PSW, they yeah stopped giving okay they stopped PSW giving for it. others. Yes, so I And think I now was the you are last here one. again for the second time. Wow. Yes, Congratulations. thank you. And Okay. I, in my PSW, I was like fortunate enough to True. have the opportunity for Staying working in a in. company as a quality controller Wow. in Signature Flatbreads. So Oh, 2 years I did work with them, and I got so much experience and all. okay. Wow. Very good. And your husband was also working. Yeah, he was working, and he was working in the same company as a Okay. supervisor, and Wow. Good. later he promoted as manager. Oh, wow. So was your baby born here in the UK? Yes, during my PSW in 2012, she was born in UK, Okay. and तो उसको तो yeah, फिर because ब्रिटिश पासपोर्ट मिला होगा oh no, it's all misconception to all, like, people, they all think that if baby born in UK, straight away the parents and baby get the British passport and or indefinite, something like that. It's nothing like that. Okay. Yeah, there are few rules, like if the baby stays here in this country for continuously 5 years, Okay. as long as the baby never leave the country, never Okay. there should be a long stay, like
Okay. कंट्री को लीव नहीं कर सकते अगर 5 year बेबी जो है एटलीस्ट ओनली बेबी लाइक इट Okay. डजंट अफेक्ट द पेरेंट्स इवन Okay. इफ दे लीव द कंट्री बट Okay. बेबी जो है द चाइल्ड हैव टू स्टे 5 years Okay. कंटिन्यूसली Continue. अगर वो रहता है विदाउट लीविंग दिस कंट्री इवन अ सिंगल डे Okay. देन ओनली जो चाइल्ड है उसको मिल जाता है ब्रिटिश पासपोर्ट लाइक Wow. indefinite stay and then of course later parents will get but as I had no plans that time to stay here for lifelong. Okay. So हमने जो है because me and my husband both were working Yeah. and जो there was no one to look after my baby. Okay. क्योंकि of course यहाँ फैमिली का तो कोई होता नहीं है इतना और as Right. long as True, I understand. पेरेंट्स जो होते हैं वही देख सकते हैं और Okay. मेरे फादर इन लॉ इतने ठीक नहीं रहते थे दैट टाइम तो मेरे मदर इन लॉ Okay. नहीं आ सकते थे Okay. और माय मदर वाज वर्किंग शी इज डॉक्टर इन इंडिया एंड उनकी गवर्नमेंट जॉब थी बिकॉज ऑफ व्हिच शी कुड ओनली हैव फ्यू मंथ्स Okay. holidays. She Okay. was here at that time. आप Okay. ये भी एक मैं बता सकती हूँ कि in case अगर कोई यहाँ पे if someone कोई भी lady है वो pregnant होती है like she Okay. expect baby they can have their parents like उनके mother-in-law या mother को बुला सकते हैं इसके लिए 6 आपको अपना months? जो है I think it's called visitor visa for them, but Okay. ये depend करता है मेरे मदर को 6 months मिला था कईयों को 3 months Okay. मिलता है I Okay. think it Wow. depends क्योंकि मेरे मदर she was in government job और Okay. तो उनको मिल उनका जो है रिकॉर्ड पूरा होता है गवर्नमेंट के पास so they trust Right. those people जो Right. गवर्नमेंट के साथ होते हैं तो उनको जो है उनकी फॉर्मेलिटीज अलग होती हैं Okay. तो आपको इसके लिए आपको देना पड़ता है एक डॉक्टर का लेटर जो Okay. आपका जीपी होता है whoever जो आपका पूरा आपके पूरा प्रोसेस उसमें हाँ Right. वो लिख के देता है कि शी ठीक है. एक्सपेक्ट और यहाँ पे इनका चल रहा है ट्रीटमेंट एंड शी Okay. कैन उनके जो पेरेंट्स है आ सकते हैं whosoever उसके अलावा आपको एक सॉलिसिटर से लिखवाना पड़ता है कि ये अफोर्ड कर सकते हैं टू कीप देम हियर और ये इनकी रिस्पांसिबिलिटी लेंगे जस्ट एक यू कैन से एफिडेविट टाइप का और एक आपका लैंडलॉर्ड जहां भी आप एज अ टेनेंट रहते हैं उनका आपको Okay, दिखाना उनका पड़ता है है. कि यू हैव इनफ रूम्स और इनफ स्पेस टू कीप देम Wow, very ये good. 3 चीजें लगती हैं एंड दैट्स ऑल और तो आपके पेरेंट्स आप दोनों सेंस कोई में रिफ्यूजल नहीं बहुत होता लकी रहे हो. आपकी मदर भी यहाँ पे आ गई आपके बेबी को देखने के लिए और आपको उस टाइम भी पीएसडब्ल्यू मिला और इस टाइम भी एग्जैक्टली एंड इट वाज सो सपोर्टिव क्योंकि वो डॉक्टर भी थे और बहुत सपोर्ट रहता है ऑफ दैट टाइम पे और बट इट वाज आई थिंक उस टाइम हमारा कोई डिसीजन नहीं था टू स्टे हियर Okay. फॉर लॉन्ग सो हमने ये अपनी बेटी को ड्यूरिंग माय मैटरनिटी लीव मैंने इसको इंडिया छोड़ दिया था शी वाज नॉट इवन 6 months फुली 6 months दैट टाइम मतलब 5 months की थी तो मैंने छोड़ दिया हमने सोचा कि लेटर हम उसको बुला लेंगे Okay. बाद में तो आपको आप इंडिया वापस चले गए थे तो would you like to share that why did you go to India like why did you move from UK? Yes, in 2015 मेरे फैमिली में one of my family person was fighting for life. तो उस वजह से we had to be there. तो हमें एक क्विक डिसीजन लेना पड़ा एंड हमें वापस जाना पड़ा. वापस हमने सोचा था कि इट्स इनफ लाइक जितना रह लिया द फैमिली नीड्स फॉर दैट इज द प्रायोरिटी तो हमें वापस जाना चाहिए तो वी वेंट बैक. ओके ओके तो आपने बता दिया बेबी को. अच्छा यस वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर बेबी यहाँ पे बॉर्न होता है तो क्या उसको बेबी बेनिफिट्स मिलते हैं यूके के? Yes, they do ask you during your maternity या फिर आपका जो डिलीवरी के टाइम एक फॉर्म होता है वो आपको देते हैं कि इफ यू वांट यू कैन टेक लाइक यहाँ पे यूके में क्या मिलता है फॉर योर फर्स्ट बेबी आपको कुछ तब 20 pounds थे आई थिंक नाउ इट्स 22 pounds पर वीक बेबी को फॉर देयर पैम्पर्स फॉर मिल्क ये सब के लिए आपको बच्चे के लिए मिलते हैं और दे गिव यू कुछ कूपन्स भी मिलते हैं विच यू कैन फ्रूट एंड वेजेस एंड मिल्क के लिए जो आप किसी भी सुपरमार्केट पे जाके यूज कर सकते हो वो तो मिलते ही है. ओके गुड. यहाँ पे इवन दो यू बहुत डोंट बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बेनिफिट्स जो इंडिया में नहीं यहाँ है. You don't have to pay even you don't have to pay a single penny for their education है ना कोई फीस नहीं देनी है कुछ नहीं देना भी नहीं देना. चलो इट्स गुड फॉर अस एंड सब स्कूल तो अच्छे होते हैं और यस
या ओके, अब आपका ये सारा पास था, अब हम प्रेजेंट में आते हैं कि आप 2015 में यू वेंट बैक टू इंडिया एंड नाउ अगेन यू डिसाइडेड टू कम टू द यूके. सो आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन व्हिच एवरीबody wants to listen, that why did you again choose to come to the UK? Why not Canada? Why not Australia? Because you already had UK experience and still you chose UK. Why? The main reason is coming back to UK again and choosing UK again only, not any other country. वो तो एक ही है. The first and foremost reason is I've already stayed here, है ना? तो Right. उसकी वजह से क्या है, you know the country rules, nothing new for you. You Right. used to the rules and regulations, like the सारी जगह का आपको पता है, how to travel और सब कुछ, and आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा नहीं बनाने पड़ते. जैसे आप किसी कंट्री में रहते हो तो आपको NI नंबर, जैसे यूके में NI नंबर बनाना पड़ता है as soon as you reach the country. और भी बहुत सारे बैंक अकाउंट्स और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं. और मोर ओवर जैसे किसी कंट्री का एक टाइम आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है टू बी अगेन हैविंग जॉब्स देयर. तो एक अलग कंट्री में जाके ये सब कुछ नया फिर से करना पड़ता. तो फिर इसलिए आई चूज यूके. और यूके स्टडी का मुझे पता था, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्टडीड हियर. तो मुझे पता था कि एजुकेशन तो अच्छी है ही. आई कैन इजीली कंपेयर विद लाइक इंडिया. तो ओके, वाओ, गुड. आपने एक मास्टर्स करी, आपने एक और मास्टर्स करने का सोचा. कैन यू रिलेट बोथ द मास्टर्स, दैट व्हाई डिड यू चूज टू डू मास्टर्स अगेन, व्हाई नॉट PhD? Yeah, when I left UK, I went back to India, and तब मेरे दिमाग में यही था कि I think now I have master, go for मैं कोई जॉब कर सकती हूँ. तो मैंने went back. तो मैंने तो starting में I joined as a professor in engineering college, and I taught there for 3 semesters as computer lecturer, computer science department में. मैंने वहाँ पढ़ाया 3 semesters, and later I thought कि मुझे जो है किसी business उसमें जाना चाहिए, इंडस्ट्री में जाना चाहिए. तो मैंने अपना जो है एक चेंज किया, जो स्विच कर दी अपनी जॉब, एंड आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैनेजर इन एग्री केयर ऑर्गेनिक फार्म्स व्हिच इज इन लुधियाना, पंजाब. तो आई वाज देयर एज यू कैन से लेटर आई रियलाइज कुछ देर बाद, लाइक आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, मैंने सोचा कि मेरे को कुछ इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा. लाइक आई एम स्टक एट वन पोजीशन जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव एनी बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन. जो मेरी प्रीवियस एजुकेशन थी दैट वाज टेक्निकल, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में जॉब मिल जाती, और विच आई हैड ऑलरेडी. लेकिन अगर मुझे इस एज अ मैनेजर, मैं यू कैन से आई वाज एज अ जूनियर मैनेजर एंड आई वाज इन दैट पोजीशन फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स. सो मुझे रियलाइज हुआ कि टू ग्रो मोर इन दिस फील्ड, टू ग्रो, टू अचीव हायर पोजीशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या किसी भी मैनेजरियल लेवल पे, यू नीड अ MBA. MBA जो है दैट गिव्स प्लस पॉइंट्स, लाइक यू कैन से बड़े पॉजिटिव आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर आपको किसी भी मैनेजर लेवल की जॉब करनी है तो. तो. ओके, एंड दैट टू आल्सो अगर यूके सर्टिफाइड क्वालिफिकेशन हो तो दैट वाज द रीजन. ओके, अच्छा, एक डेफिनेटली, बिल्कुल. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना क्योंकि अगर मैं किसी की MNC के लिए भी अप्लाई करती हूँ किसी भी कंपनी में, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, एज आई वाज एज इंटरनेशनल जो है डिग्री होल्डर होना जो है, वो कंपैरेटिवली नेशनल डिग्री होल्डर से आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलती है. वाओ, दैट्स गुड. मतलब जो बच्चे यहाँ से पढ़ाई करके अगर इंडिया भी जाते हैं तो उनके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे एज कंपेयर टू नेशनल डिग्री होल्डर्स. तो ये तो एज आई हैड लाइक जब मैंने एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया था, तो मुझे जो सैलरी मिल रही थी और जो मेरे साथ एमटेक करके इंडिया से लगे थे, आई वाज नियरली डबल. ओह वाओ, और दैट वाज द ओनली रीजन कि मेरे पास एक इंटरनेशनल डिग्री थी. दैट्स गुड, वेरी गुड. ये तो हमारे लिए, आप हमारे लिए एक मोटिवेटर बन रहे हो कि अगर हमें इंडिया भी जाना पड़ता है तो हमें पता है कि हम डबल अर्न करेंगे हमारे कलीग से. ये तो प्लस पॉइंट है. नियरली डबल, यस. या ओके, अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करी और आपने सिर्फ UCA को ही क्यों चूज किया MBA करने के लिए? Honestly, I did not search more universities. मुझे जो है क्रिएटिव आर्ट
का जब when I was going through all the universities and all, तो मुझे कोर्स वाइज और ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है, इसमें Right. आपको बहुत ज्यादा मतलब कुछ अलग फीचर्स है rather than other universities. तो मुझे लगा कि I have enough experience और I have a genuine reason to go for another masters. तो Yeah. मुझे लगा rather than going for applying for 4-5 universities or more, better stay with one and get more research on the same university. इसकी भी अच्छे से नॉलेज दी जाए अलग अलग करने से. तो मुझे इसके मॉड्यूल्स भी अच्छे लगे. ओके मतलब आपको यूके के रूल्स पता थे कि अगर हम एक पे भी स्टिक रहते हैं और हमारी प्रोफाइल अच्छी है तो हमें एडमिशन हाँ. इजीली मिल जाता है. तो द सेम थिंग हैपेंड इन योर. I was sure कि मुझे मिलेगा. आपके पास तो ऑलरेडी यूके की डिग्री थी, मिलना ही था. और इतने इंटेलिजेंट हो आप ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं. नाउ इट्स योर सेकंड मास्टर्स. ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं यूनिवर्सिटी की फीस, डिड यू गेट एनी स्कॉलरशिप? Yes, I did. Like university की fees थी, it was 18,000 pounds. Okay. और after scholarship, I've been awarded like 4,000 pounds और मुझे 14,000 पे करना था. पे करना पड़ा फॉर 1 ईयर फॉर योर मास्टर्स कोर्स. अच्छा, आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया या आपने अपने आप अप्लाई किया अपना पूरा प्रोसेस? नहीं, मैंने रिसर्च खुद करी थी. व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज, वो मैंने जब एक यूनिवर्सिटी फाइंड कर ली, बट ऑफ कोर्स टू गो फॉर द फुल प्रोसीजर, जो ऑफर लेटर अप्लाई करना ना, एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग, आई डिड नीड एजेंट. तो मैंने अप्रोच किया था एक एजेंसी को, तो उन्होंने मेरा पूरा प्रोसेस किया था. अच्छा, डिड दे चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू? बिकॉज मैंने जो एजेंट को किया अप्रोच, उन्होंने मुझसे कुछ चार्ज नहीं किया. आपके एजेंट ने आपसे चार्ज किया? जी, मेरे एजेंट ने करा था मुझे नियरली 1.5 लाख. ओके, तो जो ये पैसे थे वो उन्होंने आपके वीजा आने के बाद दिए या वीजा आने से पहले ले लिए आपसे? नहीं, बाद में लिए थे. ये एक था जेन्युइन एजेंट की पहचान होती है. 10,000 we have to pay. ओके, एज अ सिक्योरिटी. ओके, तो ये एक उन्होंने मोस्टली वो लेते हैं एज अ सिक्योरिटी, एक ऑफर लेटर. ओके, नहीं, दैट्स गुड. मैं भी अपने सारे फॉलोअर्स को यही बोलती हूँ, जो एजेंट वीजा आने से पहले आपसे पैसे मांग रहा है वो एजेंट रियल नहीं है, वो एजेंट फेक है. तो प्लीज उन पे मत जाओ. अब आपके एजेंट ने आपको वीजा दिला के दिया, उसके बाद इवन दो वो आपको कहे, हाँ, even though they ask you कि if you won't get the visa or any positive result, we will refund. बट ये सब जानते हैं कि once someone have the money और वापस करना उनको बहुत चुभता है, और वो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से आपको अपने साथ एंगेज रखें, बट they never refund. मैंने कोई नहीं सुना कि किसी ने रिफंड किया हो. राइट. तो आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू हुआ? आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू हुआ? Hello? Did you go for university interview? Yes, मेरा 3 टाइम था यूनिवर्सिटी इंटरव्यू. 3 टाइम? लाइक जो है एक गर्ल्स होती है, यू मस्ट हैव हर्ड, जो हमारा GUS डिपार्टमेंट होता है, जो कि एक बॉडी होती है, जो एक एजुकेशन बॉडी होती है. वो क्या करती है, एक यूनिवर्सिटी आपसे एक इंटरव्यू लेती है, एक फोन पे लेती है, एक वीडियो कॉल पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होती है, और एक गर्ल्स टीम से ली जाती है इंटरव्यू. तो 3 इंटरव्यूज आई हैव बीन थ्रू इन माय for this process. Okay, so would you like to share some questions जो है वो almost same होते हैं यूनिवर्सिटी के. Okay, like जो questions होते हैं वो तीनों इंटरव्यूज के सेम होते हैं. फर्क ये होता है थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं. और क्वेश्चंस ये थे कि मेरे केस में बिकॉज दे न्यू, यही क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि क्यों आप दोबारा मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं. दैट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. तो मैंने उनको भी यही कहा था सबसे पहले, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं जाते हैं अनदर मास्टर्स के लिए, वो एक ही मास्टर्स करते हैं, तो बहुत रेयर केसेस होते हैं. तो मेरे लिए तो उनके पास क्वेश्चंस यही थे कि क्यों करने जा रहे हो, और फिर यहाँ पे जब रहे थे तब क्या एक्सपीरियंस किया था. वो ये भी चेक करते हैं कि जब आप यूके में रहते हो तो आप कुछ करते भी हो या, मतलब जैसे मैंने डिग्री करी और दैट वो चेक करते हैं. आई थिंक वो चेक करते हैं कि जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस था कि मैंने अपने PSW में, क्योंकि जब PSW मिलता है तो वो इसीलिए होता है कि आप स्टडी से रिलेटेड कुछ वर्क करो. मोस्टली लाइक अगर आपको चाहिए बेनिफिट इन फ्यूचर तो स्टडी से रिलेटेड करो.
और लकीली मैंने स्टडी से रिलेटेड किया था, मतलब ओके उसमें थोड़ा टेक्निकल भी था, और एज ए क्वालिटी कंट्रोलर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी या क्वालिटी चेक राइट करना, उसको राइट एश्योर करना, इट वाज अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, तो वो मैंने किया था। तो उससे भी वो दे डिड आस्क कि आपने क्या किया था आपके अपने पीएसडब्ल्यू में, उसका एक्सपीरियंस शो करना पड़ा था मुझे ओके उनको। ओके और बाकी ऑफ कोर्स कि व्हाई यूके अगेन, वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, व्हाई राइट नॉट एनी अदर कंट्री, और राइट व्हाई ओनली यूसीए, यूसीए ही ओके क्यों, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ओके और मतलब यही सारे क्वेश्चंस होते हैं, बार बार उन्हीं कुछ को भी घुमा एक्स्ट्रा फिरा के, मतलब ओके आपने क्या, कुछ भी मतलब ऐसे, कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड ही पूछते हैं वो आपसे। ओके प्रीवियस आपका जो गैप नहीं होना चाहिए, गैप इन द सेंस कि आप स्टडी गैप चलता है लेकिन यू मस्ट बी वर्किंग, यू मस्ट हैव राइट जस्टिफिकेशन कि यस आपने इंडिया में क्या करा, तो वो राइट जस्टिफिकेशन आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, आपकी स्टडी से रिलेट होना चाहिए। ओके इवन दो आपकी पिछली स्टडी रिलेट नहीं होती है आपकी अपकमिंग स्टडी के साथ, आपका वर्क, एज लॉन्ग एज आपका प्रोफेशन और योर एजुकेशन, एक राइट चीज भी दोनों में से होती है रिलेट तो करनी भी आपका चाहिए जो है, हाँ, जैसे मेरा प्रोफेशन था, मेरी स्टडी इतनी नहीं थी, लेकिन बिकॉज मेरा आपकी जो जॉब प्रोफेशन था प्रोफाइल उसमें दोनों मैच स्टडीज चाहिए थी। तो राइट हाँ, मेरे पास एक स्टडी थी, टेक्निकल स्टडी थी, ओके लेकिन मेरे पास बिजनेस स्टडी नहीं थी, जिसकी वजह से आई वाज स्टक ऑन वन प्लेस। तो ओके उस वजह से मुझे उनको बताना पड़ा कि मुझे इसकी जिंदगी में मुझे तरक्की करनी है, मुझे अपनी अपनी लाइफ में एक बिजनेस की अगर मैं लाइन में एज अ मैनेजर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो राइट मैं एक पोजीशन पे नहीं रहना चाहती। प्रोबेबली इन फ्यूचर मैं अपना बिजनेस भी करने का सोच सकती हूँ, राइट अगर आफ्टर हैविंग एक होते हैं कि एक ड्रीम होता है बंदे का, या फिर एक प्लान होता है, और 10 ईयर प्लान तो मेरा था कि विद इन फर्स्ट 5 ईयर मुझे अपनी अनदर मास्टर्स कंप्लीट करके इसमें गेन करना है एक्सपीरियंस, कंपनीज में जॉब करके हायर पोजीशन पे, एंड लेटर आफ्टर 5 ईयर प्रोबेबली इफ आई विल बी फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो मैं अपना जो है बिजनेस भी कर सकती हूँ। वाओ यू हैव तो अ बिजनेस करने प्रोफेशनल के लिए माइंडसेट एमबीए इज मस्ट, ये तो सब जानते हैं। ओके अच्छा एक एक बेसिक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग इतनी फीस लगा के यहाँ पे आते हैं, अगर हस्बैंड फुल टाइम जॉब करता है, हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, दैट टू आल्सो विद अ किड, तो सब कुछ कमा के क्या हम अपना खर्चा या हम कुछ सेविंग कर पाते हैं? आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सो यू कैन टेल मी इन अ बेटर वे। सी जब मैं लास्ट टाइम यहाँ थी तो मेरे हस्बैंड और मैं वी वर अलोन, लाइक मेरा ओके बच्चा नहीं था तब, जब वो पैदा हुई थी तो वो इंडिया में मैं छोड़ आई थी, तो ओके उसकी वजह से मुझे जो तो अकेले पेरेंट हैं तो उनको तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, दे कैन वर्क जितना भी, एज लॉन्ग एज यू आर स्टूडेंट तब तक तो आप 20 घंटे ही कर सकते हो, ओनली राइट 20 आवर्स, बट जो हस्बैंड है वो तो फुल टाइम कर सकते हैं, तो उसमें जो है मोर ओवर जब स्टूडेंट्स को हमें समर वेकेशन होती हैं, जैसे मेरे पिछली स्टडी में थी समर वेकेशन, इसमें नहीं है, क्योंकि 1 ईयर कोर्स जो होता है उसमें वो आपको पता है सिर्फ स्टडी ही कराते हैं, लाइक राइट फुल हार्डली 3 टाइम सेमेस्टर्स पूरे होते हैं, उसमें आपको राइट कोई हॉलीडे नहीं, कोई हॉलीडेज नहीं वेकेशन नहीं। मिलती राइट लेकिन जब मैं पिछली मास्टर्स में थी इट वाज 18 मंथ्स कोर्स, तो ओके उसमें मुझे तो है बहुत छुट्टियां होती थी, जैसे ओके ईस्टर्स पे छुट्टियां हो जाती थी मुझे, राइट समर क्रिसमस वेकेशंस पे होती होती थी, है देन लेटर क्रिसमस पे होती थी, राइट तो मुझे ऑलमोस्ट छुट्टियां रहती थी, तो जिसकी वजह से मैंने तो फुल टाइम काम किया था उस टाइम। किया था ओके आपको तो यूनिवर्सिटी से लेटर लेनी पड़ती है कि आप ऑन, यू आर ऑन वेकेशन नाउ एंड यू आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम। फुल टाइम ओके तो इजीली हमारा खर्चा निकल जाता है, चाहे हम सेविंग कर पाए चाहे ना कर पाए, बट हम बिल्कुल। इजीली हमारा खर्चा अभी विद बेबी जो है वो तब सर्कमस्टांसेस पे डिफरेंट, आपको जो है जो मदर है वन ऑफ अस हैज टू बी लाइक उसको ड्रॉप करना, इंडिया की तरह यहाँ स्कूल राइट वैन्स नहीं होती है कि बच्चे को घर राइट से लेके उधर ड्रॉप कर दिया, राइट यहाँ पे जो है आपको बच्चे को छोड़ने जाना पड़ता है और राइट लेने जाना पड़ता है। तो राइट अभी एज ए आई एम स्टूडेंट तो आई एम वर्किंग 20 आवर्स ओनली, तो मेरा जो है वीकेंड पे ही जॉब होती है, तो 5 डेज आई एम फुली फ्री फॉर माई डॉटर, कि मैं उसको छोड़ भी सकती हूँ और लेके भी आ सकती हूँ, ओके यही मैं अपने इसकी वजह से जो है प्राइवेसी में बोलती हूँ प्रॉब्लम नहीं कि आती। जो फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं उनको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, लाइक अगर उनकी वाइफ स्टूडेंट है तो वो वीकेंड्स पे काम बिल्कुल करें, तब हस्बैंड घर पे रह सकते हैं और बच्चे को देख सकते हैं, और जब मदर गई हुई है वर्क पे तो फिर हस्बैंड पूरे टाइम आराम एग्जैक्टली। से यस बच्चे को देख सकता है, और जब मदर घर पे है तो हस्बैंड पूरे टाइम काम कर सकता है, तो ये एक बेनिफिट भी है ना। बट यही ये है होता है कि बिल्कुल। यस तो इफ आई आस्क यू कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? राइट नाउ आई एम वर्किंग, क्योंकि एज अ स्टूडेंट
कहीं भी we don't have much opportunities for job, क्योंकि everywhere they ask for full time, वो उन Right, true. full time वर्कर्स को ही प्रेफर करते हैं। तो जब भी वीजा में स्विच नहीं होते हैं हम लोग, until then हमें जो भी मिलती है just accept that। ये मत सोचो कि मुझे Yeah, ये नहीं true, करनी, मुझे ये जॉब नहीं करनी है, तो जो true. भी मिले, क्योंकि पार्ट टाइम में ऑप्शंस नहीं होती हैं, तो बिल्कुल, अब as पीछे long से आप as ट्राई you कर get सकती हैं। 20 hours उतना राइट, भी बहुत है। बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अब और जैसे अभी मैंने जो मैंने है देखा है, या मेरा मैंने देखा है कि जिनके पास यूके का एक्सपीरियंस होता है उनकी पे रेट भी ज्यादा होती है, और जिनके पास यूके का एक्सपीरियंस नहीं होता उनकी पे रेट कम होती है। तो आप इस बात पे मतलब आप बिलीव करते हो इस बात पे, या कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दिस? बिल्कुल ट्रूली ट्रू। यस, ओके। हाँ मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैंने एज आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन यूके, मेरे पास एक्सपीरियंस था। और जिस कंपनी में, जिस सुपरमार्केट में मैं एक सुपरमार्केट में टिल पे सर्व करने की जॉब कर रही हूँ, ओके, जो गुड। कि मैंने वहां पे किया हुआ है। ओके। तो मुझे वो ऑलरेडी वो जानते थे, तो मुझे यहाँ आके स्ट्रगल नहीं करना पड़ा टू फाइंड अ जॉब। वाओ, जब मैं इस कंट्री में आई थी, वेरी नेक्स्ट वीक जो है मुझे यहाँ पे जॉब मिल मतलब गई जो थी। जॉब मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो 20 आवर्स आई एम वर्किंग इन अ सुपरमार्केट, मार्केट में मैं जॉब कर रही हूँ, सुपरमार्केट में टिल सर्व करने की। ओके। लेकिन ये है कि जो मुझे पे रेट मिला है और जो न्यू कमर्स को मिलता है, जो फर्स्ट टाइम इस कंट्री में आते हैं और दे या ज्वाइन एज अ न्यू कमर, तो उनको क्या है, उनको मिनिमम वेजेस मिलती हैं। ओके। यूके में यूके गवर्नमेंट ने एक सेट किया होता है कि ये अमाउंट हमारा मिनिमम वेजेस, किसी भी जॉब में 8.91 is there, अगर right? आपको उससे कम पे करता है कोई, तो यू कैन हैव लीगली। यस, Okay, 8.91 इज द मिनिमम बराबर। वेजेस एट द मोमेंट। लेकिन जो ओके। मुझे मिल रहा है, विच आई एम गेटिंग पर आवर, इट्स 9.50, और ओह वाओ, which my manager गुड। said that soon it will be increased, like वो वाओ, 10 कर देंगे within a month or two। वाओ गाइस, ये तो पार्ट टाइम जॉब मतलब ये की एक डिफरेंस और होता है। बेनिफिट है कि अगर आपके पास यूके का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप 10 पाउंड्स 11 पाउंड्स फी पर आवर अर्न कर सकते हो। एंड सलोनी इज अ रियल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस। बिल्कुल। वेरी गुड सलोनी, कीप इट अप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके इंटरव्यू के बाद आपको कितने दिनों में कास्ट लेटर इशू हो गया? क्योंकि सबको बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा कास्ट नहीं आ रहा, हर कोई परेशान होता है, मैम 10 डेज हो गए, 15 डेज हो गए, कास्ट नहीं आ रहा। तो वुड यू लाइक टू हाईलाइट योर एक्सपीरियंस विद अस? मेरे केस में यस, मेरे तो पूरी इनफैक्ट बहुत हमारी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं, इट वाज नियरली किसी और कोर्स के भी, जिनको मैंने अप्रोच किया एंड आई फाउंड को मैंने उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए, तो मुझे पता चला। इनिशियली ये मुझे लगता था कि मेरे जब तक हमारे बूट कैंप्स नहीं स्टार्ट हुए थे, तो ओके। मुझे लगता था कि जो मैं ही अकेली हूँ, शायद मुझे उसी कास्ट मिलना ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता था पहले। लेकिन जब मैंने बूट कैंप्स हमारे स्टार्ट हुए, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था फेब्रुअरी इनटेक के लिए, ओके। और फेब्रुअरी इनटेक में हमारी जो है उसका आ जाना चाहिए था, मैंने अप्लाई किया था नवंबर में। ओके। 1 नवंबर को मैंने अप्लाई किया था, ओके। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर तक मेरा सारा कुछ हो जाएगा, हो और जाएगा। जनवरी में आई विल अप्लाई फॉर वीजा, कास्ट वगैरह आ जाएगा, और जनवरी में आई विल अप्लाई फॉर माय वीजा, और फेब में मैं अपनी क्लासेस लगा पाऊंगी। और ओके। मुझे ये भी श्योर था कि ऑफ कोर्स ऐसा तो कभी होता नहीं है कि क्लासेस स्टार्ट हो जाए उससे पहले तक आपका कास्ट ना आए, लेकिन ये राइट। हमारे केस में हुआ था। मेरे केस इस में बार हुआ था। सबके साथ क्या हो गया, कोरोना करके ऐसा हाँ हो रहा है, राइट। एग्जैक्टली, शायद राइट। कोरोना करके या। हुआ ये क्या रीजन हुआ कि मैंने फिर मेरे एजेंट ने बोला कीप वेटिंग, डोंट वरी। मैं उस पे हाइपर हो जाती थी कि देखो आप ही कुछ डिले कर रहे हो, आपके तो मैं अलग से खुद से अप्लाई कर लेती अगर आपको भी वेट ही करवाना था मुझे। तो राइट। वो कहते नहीं ऐसा नहीं है, देयर इज सम टेक्निकल इशू, ऐसा है ऐसा है। ओके। तो हमारा जो है कास्ट नहीं आ रहा था मेरा, फिर मेरी जो है उन्होंने और एजेंट आपकी ने बोला आप क्लासेस स्टार्ट एनरोल हो हो चुकी थी जाओ, और आप क्लासेस ले रहे थे? एजेंट ने बोला आप एनरोल हो जाओ। तो मुझे ये ओके। भी गुस्सा है कि मैं एनरोल हो जाऊं, मैं बाद में वो रिफंड नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटीज रिफंड नहीं करती हैं। आप एनरोल, वंस यू एनरोल, आपका जो इनिशियल पेमेंट विच यू हैव पेड टू द यूनिवर्सिटी, मैंने किया था 3000 पे, थ्री ओके। थाउजेंड पाउंड पे करके आप जो है कर सकते हो अपना कास्ट अप्लाई। हमारी यूनिवर्सिटी की 2500 वो था कि आप अप्लाई कर दो, मैंने 3000 पे करके किया था। तो मुझे फिर यूनिवर्सिटी को मैंने मेल करी कि मैं ऐसे ऐसे मेरा कास्ट नहीं आया, व्हाट इफ आई यू आर ईमेलिंग अस कि आप एनरोल हो जाओ, व्हाट इफ लेटर मैं एनरोल भी हो जाऊं और आप कास्ट ना दे पाओ, इन केस वी गेट रिजेक्टेड, तो क्या होता है, राइट। राइट। व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी। तो राइट। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से मेल आई कि डोंट वरी, यू विल
वी विल रिफंड योर अमाउंट, सिर्फ आपके Okay. 50 पाउंड्स Wow. आपके कास्ट के कटेंगे, Okay. तो आप एनरोल हो जाओ। फिर मैं एनरोल भी हो गई, फिर हमारे बूट कैंप्स लगे, तो बूट कैंप्स में मैंने अपने फ्रेंड्स को अप्रोच किया, क्लास पे अप्रोच किया, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हमने, तो पता चला कि सबके कास्ट डिलेज है। तो Okay. हमारी ऑलमोस्ट जैसे फेब से हमारी क्लासेस चली थी, और मैं यूके में, मेरा वीजा आया था 21 अप्रैल को। तो Oh, सोच लो कि long time. मैंने फेब पूरा क्लासेस लगाई, मार्च लगाई, और फिर अप्रैल लगाई। तो मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की क्लासेस के बाद मेरे को वीजा मिला ओके, है। तो सो ऐसा हमें नहीं है कि अगर या क्लासेस हमें लगा ये लेते हो तो बताना नहीं चाहिए मिलता। लोगों को कि अगर कास्ट नहीं आ रहा, दे शुड नॉट वरी। अगर यूनिवर्सिटी बोलती है आप एनरोलमेंट करा लो, तो हमें हाँ करा लेनी चाहिए। और एक और चीज जो आपने मेरे साथ शेयर करी थी कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आई थी कि अगर आपकी अटेंडेंस फुल रहेगी तभी हम कास्ट इशू करेंगे, कुछ ऐसा भी हुआ था आपके केस में? हाँ, तभी ये भी था, क्योंकि 2 लड़कियां हमारे साथ ऐसी थी जिनको कास्ट नहीं आया, उनको ये मेल आई थी। हमें मेल कास्ट आने से पहले 2 दिन पहले उन्होंने मेल कर दी कि वी आर मॉनिटरिंग योर अटेंडेंस, एंड वी आर लाइक वी आर हैप्पी इनफ, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म दैट यू योर अटेंडेंस, यू गॉट फुल वाह, अटेंडेंस, गुड। जिसकी वजह से, टू विच द नेक्स्ट वीक यू विल गेट योर कास्ट, वी विल इशू योर कास्ट। तो 2 लड़कियां थी जिन्होंने स्टार्टिंग का 1 वीक मिस किया था, और उनकी ओके, वो किसी और कोर्स की थी, उनकी उसकी वजह से उनको मेल आई थी कि बिकॉज वी आर unfortunately we cannot issue you cost just because your attendance doesn't meet the criteria। तो आपकी जो है अटेंडेंस शॉर्ट है, तो उनको यूनिवर्सिटी ने 2 वीक्स की, पता नहीं 1 वीक का और टाइम दिया ओके, कि जस्ट आप, अब हम अगले नेक्स्ट 2 वीक्स हम आपको मॉनिटर करेंगे, तो कीप योर ओके। अटेंडेंस फुल, तो आपको मिल जाएगा। फिर उनको मिल गया था, बट ऑफ कोर्स उनका डिले हो गया था। ओ, ओके। चलो, अब तो आपका कास आ गया। कास आने के बाद आपने वीजा फाइल किया होगा, तो आपने नॉर्मल वीजा फाइल किया या प्रायोरिटी वीजा फाइलिंग करी? मेरे साथ के सबने प्रायोरिटी करा था, लेकिन आई वाज द ओनली वन जिसने नॉर्मल में अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे एजेंट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर उनको रोकना है आपका वीजा, अगर आपको कुछ भी उनको जांच करनी है, कुछ भी उनको इन्वेस्टिगेट करना है, तो दे कैन इवन स्टॉप, इवन होल्ड योर प्रायोरिटी सर्विस। एज सच कुछ नहीं ओके, है उनके ऊपर कि प्रेशर नहीं है कि उनको देना ही देना है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम प्रायोरिटी लगाएंगे तो उनके पास इतना इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं होता, ओके। एंड यही लेकिन सेम ऐसा कुछ केस नहीं है। आज मेरे पास आया। एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम मैं सुपर प्रायोरिटी वीजा लगा लूंगा ताकि मैं इंटरव्यू से बच जाऊं। तो मैंने बोला इट्स नॉट गोना हैपन। अगर उन्होंने इंटरव्यू लेना है तो वो आपका इंटरव्यू इट्स लेके नॉट। रहेंगे, वेदर इट्स प्रायोरिटी और इट्स सुपर प्रायोरिटी। सो यू वेंट फॉर नॉर्मल वीजा, राइट? तो सबसे मेन क्वेश्चन जो हम सब जानना चाहते हैं कि आपका वीजा इंटरव्यू आया या नहीं? यस, और मेरे एजेंट ने मुझे बोला था कि 100% आपका आएगा, क्योंकि मैंने उसको बोला कि मेरे साथ के सारे स्टूडेंट्स का किसी का नहीं आ रहा, क्योंकि हम सारे ओके, ग्रुप में थे व्हाट्सएप पे, तो एवरीवन वाज इन्फॉर्मिंग कि आज मेरा वीजा आ गया, आज मेरा आ गया। तो वाओ, मुझे था, मैंने कहा किसी के इंटरव्यू नहीं आई तो आई एम श्योर मेरी भी नहीं आएगी। तो वो कहते नहीं, आपका केस डिफरेंट है, आपके केस में उनको बहुत क्वेश्चंस होंगे टू आस्क, तो आपकी आएगी। एंड इट हैपेंड, मेरे को ओके, मेरी इंटरव्यू हुई। ओके। तो आप प्लीज अपनी इंटरव्यू प्रोसेस हमसे शेयर करो, कितने घंटे का हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, और मतलब आप क्या सजेशन देना चाहोगे मेरे सब्सक्राइबर को कि वो कैसे बिहेव करें, क्योंकि लोग इंटरव्यू के नाम से ही डर जाते हैं कि यस, इंटरव्यू है। तो आप प्लीज टिप्स दो नहीं, हमें। जब आप डर गए तो वो आपको ऐसे कैच कर लेंगे कि इसके मन में, मतलब ही इज नॉट श्योर, जेन्युइन स्टूडेंट, ये इसने राइट, रटे हुए आंसर्स हैं, कोई वो राइट। नहीं है, इसका तो है जेन्युइनिटी, वो गैस कर लेते हैं विद योर ओके, कॉन्फिडेंस। ओके, सबसे पहला है आपको कॉन्फिडेंट होके आंसर्स देने हैं आपको ओके, बहुत, क्योंकि हम जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू होती है ना, वैसी नहीं होती है। राइट। इसमें क्या डिफरेंस होता है, मुझे उन्होंने इन्फॉर्म किया एक दिन पहले। I got a call. I was sleeping like रात सुबह 9:15 का, 9:15 का टाइम था, तो मुझे कॉल आया दिल्ली के नंबर से। तो मुझे लग रहा था कि इट्स दिल्ली का नंबर, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश वहाँ हाई के कमीशन, राइट। होगा। तो मैंने कॉल उठाया, तो उन्होंने बोला हम ब्रिटिश हाई कमीशन से, इट्स कॉल फॉर योर इंटरव्यू, आर यू ओके फॉर टुमारो, अगर हम आपका स्केड्यूल करते हैं इंटरव्यू टुमारो इस टाइम पे लाइक 1 o'clock, तो आप आर यू ओके विद दैट। तो मैंने कहा यस आई एम ओके। तो फिर वो हो गया, और उसके अलावा आफ्टर
दिस कॉल जब आप यस कर देते हो, सेंड करते हैं कंफर्मिंग कि आपके इस टाइम पे ईमेल है, एंड देन वो आपको नेक्स्ट दोबारा ईमेल करते हैं, लिंक सेंड करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होती है और उसका लिंक होता है जो आपको क्लिक करना होता है एग्जैक्टली व्हाट टाइम दे गिव यू। ओके, और वो वीडियो कॉल होता है, आप उन्हें देख पा रहे होते हो या वही सिर्फ आपको देख पा रहे होते वीडियो में हम नहीं देख, वो हमें देख पा रहे होते, हम उनको नहीं देख पा रहे होते, और आपको ऐसा लगता है आप अकेले बात कर रहे हो। राइट, आई कैन इमेजिन, मैं भी इस प्रोसेस से गई हूँ, मेरा पूरा इंटरव्यू 1 आवर का हुआ था। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका इंटरव्यू कितनी देर का हुआ और क्या एक्सेप्शनल क्वेश्चंस थे जो उन्होंने आपसे पूछे? मेरा भी ओके 1 आवर, ओके 1 आवर का था इंटरव्यू। और नॉर्मली वो क्वेश्चंस तो वही पूछते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के टाइम पे पूछते हैं कि व्हाई यूसीए, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस Why UK? कंट्री, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री, व्हाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे। और मेरे से थे इसमें से बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे, लेकिन मेरे से ज्यादातर क्वेश्चन थे, क्योंकि बिकॉज आई वाज ऑलरेडी एंगेज्ड विद माय क्लासेस, मेरी Right. क्लासेस चल रही थी जिसमें कि मुझे मैंने रियली हाफ ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पढ़ लिया था, तो ऑफ कोर्स मुझे पता था कि वो क्वेश्चन करेंगे, ये देखने के लिए कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं जेन्युइनली पढ़ रही हूँ, डू आई हैव एनी नॉलेज जो मैं क्लास में अटेंड कर रही हूँ, क्या मैं Okay. उनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। Okay. तो मुझे पता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा अपने सर्च करी क्लासेस थी पे आपने? कंसंट्रेट करा, Okay. थोड़ा ज्यादा स्टडी भी किया, जो हमारी क्लासेस के अपलोड्स होते हैं लेक्चर्स, मैंने Okay. उनको भी गो थ्रू किया था। Okay. और उसके बाद मैंने जब इंटरव्यू का मैंने स्टार्ट करा, तो उसने मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू और एमएससी इंटरव्यू में फर्क होता है, दैट इज कि हमें एमएससी इंटरव्यू में बहुत स्लोली बोलना होता है, वो आपको Right. एक एक वर्ड, लाइक वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको बोलना होता है हेलो आई एम सलोनी महाजन, ऐसे बोलना होता है, लाइक यू गेट टाइम वो टू थिंक टाइप कर अबाउट योर रही नेक्स्ट होती है लाइन, साइड आपको पर्सन। इतना पता होता है बिकॉज दे आर टाइपिंग एज वेल। Yeah. हाँ, तो वो वहां पे टाइप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम मिलता है, वो आपको होल्ड ऑन करते रहते हैं कि प्लीज Okay. ओके स्टॉप हियर, वो आपको बोल देते हैं, तो Okay. आपको अपना पूरा आंसर एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं मिलता। Okay. जैसे कि अगर मेरे पास एक्सप्लेनेशन है बहुत ज्यादा, मतलब अगर 5 लाइन्स की है, तो मे बी आफ्टर 2 लाइन्स शी कैन और ही कैन स्टॉप यू। ओके, एट एनी मोमेंट। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी थी, आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था, कास्ट भी आ गया था, अगर वीजा रिजेक्शन हो जाता तो आप यूके ना आ पाते? हाँ, राइट? फिर नहीं आ पाती। नहीं आ पाते। तो आप अपने हस्बैंड अपनी डॉटर के साथ आए या नहीं आए? नहीं, क्योंकि मैं उन्होंने भी मुझे नहीं इंटरव्यू में आई, पूछा आप भी भी था नहीं कि आई तो आर यू कमिंग। so I क्या would कह like रहे to know, मैं भी हैं? नहीं आई, ये आप सब। भी, मैं भी नहीं आई अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर के साथ, आप भी नहीं आए, तो मैंने अपना रीजन ऑलरेडी अपने सब्सक्राइबर्स को बता दिया। अब मैं आपका रीजन जानना चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर के साथ आए? हम्म, मेरा ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हमें हमारा वीजा इस तरह से था कि ऑन द स्पॉट हमें टाइम नहीं था, मतलब हमारे पास टाइम नहीं था कि टू बाइंड अप एवरीथिंग, क्योंकि हम राइट। वहां पे पिछले 5 इयर्स से रह रहे थे, तो ओके। ऑब्वियसली आप एक जगह 5 साल रहते हो तो आपका बिजनेस भी होता है। मेरी बेटी स्कूल भी जाती थी, तो मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि हमें तो श्योर ही नहीं था ओके, कि कि दोबारा। हमारा वीजा आएगा कि नहीं, क्योंकि क्लासेस भी चल रही थी। हाँ, ओके। क्लासेस भी चल रही थी, और अगर वीजा नहीं आता तो मतलब हम बाइंड अप नहीं कर सकते थे, राइट, ट्रू। हमें तैयारी करने का टाइम ऐसी नहीं मिला, तो सिचुएशन थी आपकी। वी न्यू दैट इट विल टेक लाइक कपल ऑफ मंथ्स टू बाइंड अप। हम ओके। मेरे हस्बैंड का बिजनेस, हाँ, स्टेशन की वजह से मैंने एम्बेसी को भी ना ही बोला कि मेरे हस्बैंड अभी नहीं आएंगे मेरे साथ, द ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट मैं ही फ्लाई करूंगी, ओके। क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिजनेस है और मेरी बेटी स्कूल जाती है, तो उसकी सेशन कंप्लीट होने में और सब कुछ होने में भी, तो इस बट लेटर वो जरूर आएंगे ओके, ड्यूरिंग हर तो हॉलीडेज, या ये भी फिर एक कभी टिप भी मेरे है हस्बैंड जो का जब भी मैंने भी टाइम उनको बिजनेस से दिया लगा और कि आप अब भी हमें उनको जाना दे रहे चाहिए। हो, कि अगर आपके हस्बैंड और आपके डॉटर ने या आपके किड्स ने आपको बाद में अकम्पनी करना है, तो आप सीधा नो नहीं बोल सकते वीजा ऑफिसर को। यू कैन से दैट कि पहले हम ट्रैवल करेंगे और नहीं थोड़े बोल टाइम सकते। बाद वो लोग आएंगे। राइट? ओके, तो अब आप यूके पहुंच गए, आपका वीजा आ गया, सब बिल्कुल। कुछ हो गया, तो
आप आए जब इंडिया रेड लिस्ट कंट्री में थी, तो आई वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस। आपने कैसे होटल क्वारंटीन किया, कितना पैसा आपको देना पड़ा, हाउ वाज द फूड क्वालिटी, आपकी कैसे कैसे टेस्टिंग हुई, आप अकोमोडेशन बुक करके आए थे या नहीं आए थे, या आपने अब कर ली, और आप एक किट के साथ हो तो आपको किस टाइप का हाउस यहाँ पे लेना पड़ता है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस, हियर यू गो। ये सबसे पहले जब मेरा वीजा आया तो मुझे अपनी फ्लाइट टिकट बुक करवानी थी। आपको फ्लाइट टिकट आप बुक करवाते हो और उसके बाद रूल है कि आपको अपना जो है लोकेटर फॉर्म फिल करना होता है और होटल क्वारंटीन को बुक करना होता है। तो मोस्टली क्या कहते हैं कि आपके जैसे अगर फ्लाइट डिलेज भी होते हैं, कई बार कैंसिल हो जाते हैं, तो डोंट बुक योर फ्लाइट है और जो होटल है वो इकट्ठा बुक मत करो कभी भी, जस्ट बिकॉज कि हो सकता है आपकी फ्लाइट डिले हो जाए और आपका यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर द होटल और वो आपको रिफंड नहीं होगा। यू कैन नॉट। मैंने तो ये सोचा था कि लाइक गवर्नमेंट को ये एज अ पैकेज करना चाहिए, फ्लाइट और होटल क्वारंटीन इकट्ठा होना चाहिए, सो दैट अगर फ्लाइट डिले होती है तो क्वारंटीन का भी डिले हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है अभी, सो इसलिए 48 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट आप बुक मत करें। हमने जो है जब 48 आवर्स रह जाते हैं तो उस तब आप बुक कर सकते हो, क्योंकि फ्लाइट जो है अगर कुछ भी डिलेज है कुछ भी है तो ऑन द स्पॉट नहीं करते हैं, वो आपको एटलीस्ट 48 आवर्स इन्फॉर्म करते हैं। तो अगर आपको सच कुछ भी डिलेज का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप अपना होटल बुक करें। ऑनलाइन एक लिंक होता है गवर्नमेंट की साइट पे, आप वहां पे होटल में आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, तो वो आपको जो है होटल क्वारंटीन का जो प्रोसेस है उस पर ले जाते हैं। उसमें आपको फिल करनी होती है अपनी सारी डिटेल्स की, कितने रूम्स और कितने बंदे रहेंगे। जैसे मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर ने रहना है तो उन्होंने अपना 2 जनों का बुक कराया है। अगर 1 पर्सन रहता है तो उसका 1750 है। बच्चे का जो है अंडर 3 ईयर वो कुछ नहीं लेते हैं, और 3 ईयर्स से लेके अगर आपका 12 ईयर्स तक कोई बच्चा है जैसे मेरा है तो उसका हमने नियरली 400 पाउंड पे करा है, और 350 एंड दे समथिंग लाइक बोथ आर दैट। स्टेइंग इन द सेम रूम, वो दोनों सेम रूम में रह रहे हैं आपके हस्बैंड? सेम रूम, ओके सेम रूम में रह रहे हैं। 2 सेपरेट बेड्स हैं वहां पे, और वो है। लेकिन फिर वो उसमें आपको वो खाने का देते हैं, आपको टॉवल्स वगैरह देते हैं, लॉन्ड्री होती है जिसमें कि लॉन्ड्री में आप 7 अपनी क्लॉथ्स दे सकते हो, 7 पीसेस। अगर आपकी सॉक्स है तो वो भी दैट विल बी काउंटेड एज 1, अगर आपकी जीन्स है तो वो भी 1 काउंट होगी। तो बेटर इज आप अपने बड़े कपड़े दो, ठीक है, आपको पेस्ट नहीं मिलती है। मेरे टाइम पे मेरे हस्बैंड को तो मिली ही नहीं। मेरे टाइम पे क्या था कि मैं नहीं लेके गई थी, लेकिन आई रिक्वेस्टेड देम, तो वो आपको मुझे दे गए थे। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि आप साथ लेके आओ, वो ले आए थे। और आपको शावर जेल मिलता है, लेकिन आपको जो शैम्पू मिलता है, आप अपना अगर अच्छा शैम्पू लगाना चाहते हो शैम्पू ले आओ अपना, वो अपने हिसाब से देते हैं जो भी वहाँ पे पाउचेस में होते हैं या फिर बॉटल्स में, लिटिल बॉटल्स होती हैं उसमें होते हैं। तो आपका खाना जो होता है आपको इंडियन नहीं मिलता, आपको 3 टाइम्स का खाना मिलता है। ओके, खाना इंडियन नहीं मिलता, वो अपने हिसाब से खाना देते हैं, नहीं मिलता। तो वो खाना कुछ अपनी खाने की चीजें साथ ले जानी चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था, वो ले आए थे, जैसे मैगी ले आए थे जो क्विकली बन जाती है, कुछ पॉट नूडल्स ले जाओ जिसमें आप सिर्फ केटल मिलती है, आपको माइक्रोवेव नहीं मिलता, तो केटल में आप अपना डाल सकते हो पानी बॉईल करके। मतलब टी बच्चों कॉफी के लिए आपको मिल्क और शुगर वगैरह मिलते हैं, बच्चों के साथ होती है। ओके ओके। तो आपने जब आप पहले आ गए और अब आपके हस्बैंड और आपकी डॉटर होटल क्वारंटीन में हैं, और तो आपने उनका प्रोसेस कैसे लगाया, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए, कितना टाइम लगा, कब उनका वीजा आ गया, थोड़ा सा इस प्रोसेस के बारे में भी आप हमें बताएं। यस, मेरे हस्बैंड का जब अप्लाई करना था, हर एजेंट अपने रूल्स आता है। हर मेरे एजेंट ने मुझे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा बीआरपी आने में थोड़ा टाइम लगना था, लेकिन मेरे एजेंट ने बोला वी डोंट नीड टू वेट फॉर योर बीआरपी। जो आपका पासपोर्ट, कुछ लोग क्या करते हैं, या एजेंट मोस्टली 99% एजेंट्स कहते हैं कि जब वाइफ वहां पहले गई है तो उसका बीआरपी आने दो, बीआरपी लगाएंगे हम साथ। मेरे एजेंट ने बोला नहीं लगाना, क्योंकि जिसको अगर आपको वो जो विजिट स्टिकर मिला है आपको, जो आपका वीजा का स्टिकर जो आपके पासपोर्ट पे लगा है, अगर वो मिला है तो डेफिनेटली आपको जो आपका बीआरपी मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा, आज नहीं तो कल तो मिलेगा, इवन इफ इट्स डिलेड तो मिलना ही मिलना है। तो देयर इज नो नेसेसिटी कि आप अपना बीआरपी का वेट करके कोई 2 महीने वेस्ट करें और फिर लगाएं। यू कैन अप्लाई फॉर योर हस्बैंड और योर बेबीज वीजा स्ट्रेट अवे जब आप यहाँ आ जाते हो। आपने 1 वीक कितने के दिनों बाद बाद अप्लाई किया? मैंने जो है अप्लाई किया था, मैं आई थी यहाँ पे 12 मई को, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो आए हैं, उनका हमने अप्लाई किया था 4
जून को। ओके, तो बहुत कम ड्यूरेशन में आपने अप्लाई कर दिया। नॉट इवन अ मंथ, हाँ, यस, मंथ नॉट भी नहीं इवन। करा था हमने। ओके, हाँ, तो उनका भी और आपने उसके लिए कोई नॉर्मल। डॉक्यूमेंट्स ज्यादा नहीं लगाने हैं। जो एम्बेसी क्या करती है, ऐसा कई बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो कहते हैं ये भी लगा दो, बिजनेस का लगाओ, राइट, स्कूल का लगाओ, राइट, वो मैंने अपने भी लगाया था। आईटीआर्स लगाओ, यहाँ राइट, इनकम टैक्स रिटर्न्स लगाओ, बड़ा कुछ राइट। दिखाओ। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, उनके पास इतना ओके, टाइम नहीं है। वो आपकी फाइल में 3 चीजें देखते हैं। आपकी वाइफ का जो है वीजा, ठीक है, ओके, और आपके जो है फंड्स, ओके, हस्बैंड के फंड्स, ओके, हस्बैंड का जो है आपका पासपोर्ट, बस यही चीजें चाहिए उनकी। दैट्स 3 इट। चीजें लगाई थी मेरे एजेंट ने। वाओ। मेरा मेरा एनरोलमेंट लेटर लगा था, अच्छा, यूनिवर्सिटी ओके, ओके, का, बस, बस। जिसको हम स्टेटस लेटर भी कहते हैं, वो ओके, लगाया था, जिसमें आपका यूके का एड्रेस होना चाहिए, जो जहाँ आप रहते हो, और आपका इंडिया का परमानेंट एड्रेस होता है, वो होना चीज चाहिए। बस। वाओ, आपको तो बहुत सिर्फ कम ये 3 डॉक्यूमेंट्स चीजें बनाने लगाई थी पड़े। मेरे एजेंट ने। और उनका 1 वीक में, यू वोंट बिलीव, उनकी हमने प्रायोरिटी सर्विस भी नहीं ली, नॉर्मल सर्विस ली, और विद इन 1 वीक उनका 4th को हमने अप्लाई किया था, उन्होंने फाइल सबमिट कराई, 13th को उनका वीजा लग गया और था। 28 जून को वो यहाँ आ गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ आ गए थे। वो फाइनली। 30th को आए थे। ओके, ओके, दैट्स गुड। ओके, अकोमोडेशन के बारे में आप बताएंगे, हैव यू टेकन एनी अकोमोडेशन? यस, अभी मैंने 2 bedroom हाउस लिया है यहाँ पे, ओके, ठीक है, जिसमें गार्डन है, और उसका मुझे है 900 पे करना है, ओके, सिर्फ एक्सक्लूडिंग बिल्स, सिर्फ ओके, जो रेंट ही रेंट है, ओके। इज इट वो पे करना फर्निश्ड और है। और अनफर्निश्ड? यहाँ पे बच्चा है अगर आपका, इट्स अनफर्निश्ड, वो सिर्फ देंगे, इट्स पार्ट फर्निश्ड, यू कैन से, ओके, लाइक ओनली रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन ओके, एंड ओवन एंड कुकर मिलेगा। ओके, और जो है आपके इस कंट्री में आपका अगर बच्चा है साथ में, सो यू आर नॉट अलाउड टू स्टे इन 1 रूम विद बेबी लीगली। एज ओके, लॉन्ग एज आप किसी शेयरिंग में रहते हो तो आप इलीगली रहते हो, मतलब कोई ओके, चेकिंग ना हो जाए, ओके, आपका जो है अपना बेबी का सेपरेट रूम होना चाहिए। ओके। चलो, इट मीन्स यू आर ऑल अगर सॉर्टेड। वो इन्फेंट है, अंडर 3 years है, तो फिर बेबी कोट में आपके बेड के साथ होना चाहिए। ओके, बेड पे आप नहीं सुला सकते बच्चे को बेड अपने पे साथ। नहीं चला। ओह वाओ, इट्स अ गुड रूल। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेन क्वेश्चन। फ्यूचर प्लान्स अभी तो अभी तो जो है, देयर इज मिक्स्ड, यू नो, आई एम गेटिंग मिक्स्ड रिव्यूज। मैं आई एम कंसल्टिंग जो सॉलिसिटर्स, उन सबके अपने हैं, सबके मोस्टली तो 90% सॉलिसिटर्स ने बोला है कि मुझे पीएसडब्ल्यू मिलेगा, लेकिन ओके, ओनली 10% आर सेइंग कि जो है वंस इन अ लाइफ ही आपको मिलता है, अगर आपने ओके, ले लिया है तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ओके, 90% कहते हैं कि यू आर अगेन ऑन टीयर 4 वीजा, ये आपका ओके, अलग वीजा है, इसमें आपने ओके, अलग से फीस दिया, अलग से पेमेंट करी, अलग से स्टडी करी है। तो ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल, जिसने इस टाइम पे टीयर 4 में स्टडी ली है, उसको आफ्टर मास्टर्स मिलेगा ही मिलेगा। देयर इज नो कंडीशन कि आपको पहले मिला है तो नहीं मिलेगा, ऐसा ओके, नहीं है। अब लेट्स सी, ये तो अब फरवरी एग्जाम्स के बाद पता चलेगा, पता जब मैं चलेगा। अप्लाई करूंगी राइट, या फिर जब मैं करने राइट। लगूंगी। मोर ओवर, अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो ग्रेजुएट रूल में बहुत ज्यादा, पीएसडब्ल्यू तो है ही है, उसके अलावा आपके पास हाईली स्किल्ड वीजा, जो ये स्किल्ड वीजा, वर्कर वीजा बंद हुए थे जब मैंने लिया था पीएसडब्ल्यू, उसके बाद बंद हो गया था, तो अभी ये फिर स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है तो यू कैन स्विच योर वीजा इन टीयर 2 वीजा, इवन ओह इफ यू वाओ, डोंट ये कंप्लीट तो योर बहुत स्टडी, वो बहुत तब भी अच्छी कर सकते अपॉर्चुनिटी हो। है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर फीस दी है तो डेफिनेटली पढ़ो, और कंप्लीट करने के बाद हम, अगर, मेरी तो यही रहेगी कि आई विल ट्राई फॉर अ कंपनी जो मुझे अच्छी जॉब मतलब के लिए अप्लाई करूंगी, अगर मुझे ओके, मिल जाएगी तो आई विल स्विच टू पीएसडब्ल्यू, तो मैं उसके लिए जाऊंगी। मतलब दोनों में से अगर एक को भी मिल गई तो आप उनके डिपेंडेंट बन सकती हो। लाइक आपके हस्बैंड को कोई हाँ, स्पॉन्सर कर देता है तो आप उनके डिपेंडेंट अगर बन जाओगे। तब भी आपको तो स्पॉन्सर मैं कर डिपेंडेंट। दिया तो वो आपके डिपेंडेंट बन जाएंगे, और आफ्टर 5 years विल गेट योर ILR देयर इज अनदर वन मोर ऑप्शन जो अभी भी मेरे मतलब उसमें है, लिस्ट में। कि मेरे पास ये 3 ऑप्शंस होंगी। लिस्ट में ओके, है कि बिजनेस वीजा, हमारे जो टाइम पे तब था, अभी फिर से जो रूल्स तब बंद हो गए थे, फिर से गवर्नमेंट ने चलाए हैं। अभी ओके, आप इस कंट्री में अगर 50,000 पाउंड इन्वेस्ट करके अपना कोई बिजनेस खोलते हो, जैसे मेरे हस्बैंड भी अगर खोल सकते हैं, वो खोलते हैं, तो आई विल बी डिपेंडेंट ऑन देम।
तो अगर मैं खोलती हूँ, अगर मुझे खोलना है तो मुझे कोई कंपनी ही खोलनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू माय, रिलेटेड टू माय स्टडी। जैसे एमबीए Okay. से रिलेटेड कोई भी कंपनी खोलती हूँ मैं। और Okay. जो मेरे हस्बैंड है वो कोई भी जैसे सुपरमार्केट खोल सकते हैं, कुछ भी ग्रोसरी खोल स्टोर, सकते ऑफ लाइसेंस कुछ भी हैं। खोल Okay. सकते हैं Okay. रजिस्टर करवा के। अगर वो हम बिजनेस करते हैं, इस कंट्री में स्पेंड करते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं 50,000 पाउंड, तब भी हमें सेम विद इन 5 ईयर ILR मिल जाएगी। Oh wow, that's great. तो So 3 ऑप्शंस है, नथिंग डिसाइडेड, कैसे हम किस में जाएंगे, ये ऑल डिपेंड्स कि कैसा रहेगा हमारा आने वाला टाइम। so this video was very informative. I am sure that it's going to help a lot of students out here. Thank you so much for giving your precious time. It was very insightful. हमें बहुत ज़्यादा knowledge मिली and मुझे भी in fact बहुत knowledge मिली. Thanks a lot. I hope ये बाकी students को भी help करे. All the very best for your future. और अगर कुछ भी आपके साथ नया नया होता है तो I will call you again. And again we'll do a live video जिसमें मैं आपसे और कुछ डेफिनेटली questions अब मैं तभी आपको करूंगी। yes, अब हम thank तब you करेंगे so जब much. मैं अपना जो नेक्स्ट वीजा, चाहे मैं Yes, बिजनेस पे जाती हूँ, चाहे मैं yes, टीयर 2 में जाती हूँ, PSW में जाती हूँ, तब आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। yes. Thank you ओके, so much once again. Bye bye. Take care. See you. थैंक यू, Yeah, bye bye. बाय एवरीवन, बाय Bye. बाय Thank तृप्ति, you. थैंक Bye, यू, friends. थैंक See यू you फॉर in my कॉलिंग next मी हियर, video. Bye bye. Thank you. It was my pleasure to talk to you. बाय। Bye.